one power which God has given all of us, that is power of observation, power of understanding, and power of writing. Yes, if you are little educated, you know how to write, you can express yourself, you can write a book, you can be an author, you can write some papers, you can create magazines and whatnot. This writing power is one of the biggest powers which man has been carrying. I mean, no animal, trust me, no other living thing on this earth actually can write. It's only human being who has been given this power to write. So you have to take best use of these kind of programs where you can learn, understand, and observe different things, different experiences of different people from different parts of the world, and what they are carrying. Probably you will never be able to experience that what others have actually experienced. दिल के दीवारों दर पे क्या देखा, दिल के दीवारों दर पर क्या देखा, बस तेरा नाम ही लिखा देखा, मैंने तेरी आंखों में क्या देखा, कभी कातिल कभी खुदा देखा. My dear friends, ये कवि, ये पोएट्स, ये ऑथर्स, ये राइटर्स, ये बड़ी जल्दी आपकी तुलना किसी न किसी ऐसी चीज से कर देंगे कि आप खुद ही चकाचौंध हो जाएंगे. इनके पास शब्दों का ढेर है. वो जो एक्सप्रेशन पावर है, वो याद रखिए, वो पढ़ने से आती है. जो जितना ज्यादा पढ़ेगा, जितना ज्यादा देखेगा, जितना ज्यादा सुनेगा, उतना ही ज्यादा और खूबसूरत ढंग से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकेगा. आज जो यहाँ पर जो पोस्टर जो लॉन्च हुआ है, 1916 में उनका जन्म होता है मथुरा में. पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो उनके दो जो दर्शन हैं, एकात्म मानववाद और अंत्योदय, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी ये दोनों चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं. आप ये कहेंगे कि एकात्म मानववाद क्या है? एकात्म मानववाद ये है कि जिस समय पर 1937 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जब आरएसएस को उन्होंने ज्वाइन किया था, उनकी विचारधारा के साथ वो चले थे, तो उस समय पर अगर आप ऐतिहासिक परिदृश्य को या पॉलिटिकल परिदृश्य को अगर देखेंगे, तो उस समय पर साम्यवाद, कम्युनिज्म और पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, ये दो धाराएं जो थी बहुत ही प्रबल थीं. और कहीं ना कहीं ये जो विचार है, ये लगातार जो है ये प्रभावित कर रहा था विश्व की राजनीति को. तो उन्होंने कहा कि हमारा जो भारत है उसका अपना एक दर्शन होगा जो राष्ट्रवाद की नींव पर होगा. और वहां पर उन्होंने एकात्म मानववाद, यानी कि व्यक्ति, परिवार, समाज, और उस समाज से राष्ट्र और राष्ट्र से मानवता. I feel that there is an instinct of writing in everyone because it lets you express yourself in a beautiful way. It's just not for the public, it's for you yourself as well. I love to enjoy a book, by the way, with a coffee or a tea. I believe a literary piece is an expression of one's experiential learning, and it opens up to the public to bring about a change and open new dimensions of food for thought. This is my thought as a non-writer, but I'm sure everyone will be able to relate to this. You know, when you start writing a book, you ask yourself, why must I write this book? Will anybody read it? That's the typical self-doubt that you have, and you have this writer's block right at the beginning, and then you have it many times as you progress into this book. And also, writing is a very long and sometimes a very lonely and painful journey, and it takes a very brave person to undertake this kind of journey. You know, when I started my first book, I was all of 20 years old, and I was a research student. I used to be sitting inside the lab, and I used to be worrying that I'm never going to be able to solve my research problem. That was back in AIIMS when I was doing my MSc and PhD, and that is when I started writing my experiences. As Mr. Marva had said, that you can at least write your own story, and that's what I thought. Basically the work was very complicated. It was something that I was told that had never been done before. It was very challenging, and of course they gave me something like 5 years to do, but it took me 11 long years to do it. अगर राइटर बनना है तो 3 चीजें ध्यान रखना. पहली चीज, डेली लिखो.
अगर आप राइटर हैं तो आपको रोज लिखना है, क्योंकि ये वैसा ही है कि अगर आप रोज नहीं लिखेंगे, आप रोज गाड़ी नहीं चलाते हैं, कुछ साल बाद चलाएंगे तो वो अचानक आपसे फिर बैलेंस नहीं होता है। तो ये प्रैक्टिस का काम है। तो आपको डेली लिखना, चाहे अच्छा लिखें बुरा लिखें, वॉट एवर कम्स टू योर माइंड, प्लीज पेन इट डाउन। सेकेंड थिंग, रीड एवरी डे. So you have to read something, some literature, some material you have to read every day and then discuss it every day. Owe my career to my father playing rummy, because on Sundays there used to be rummy in the house and people would come and there was a program called Inspector Eagle in the 60s, radio program which took the country by storm. The older people might have heard it. And I was, I think, 13, and I told him, I started reading. Reading is very important, like everybody says. So I started with Agatha Christie, Sherlock Holmes, Ernest Stanley Gardner when I was 10. And I was taken up by detective. So I told him, Uncle, आपका जो last plot था उसमें खूनी मैंने guess कर दिया, कुछ मज़ा नहीं आया. So before all the guess, and his ego got hurt. So he said, बच्चे तेरे को इतना आता है तो तू लिख के देना मेरे को. तो I said, Uncle, कितना दोगे? He said, 25 रुपया प्लॉट का. 25 रुपया इज़ अ बिग अमाउंट. चौन्नी का तो कोका कोला आता था. तो मैंने 5 प्लॉट फटाफट लिखे, आधे चोरी किए, आधे खुद सोचे, एंड आई गेव हिम. एंड ही गॉट अ शॉक एंड ही सेड, आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड दीज. सो ही रिकॉर्डेड 3 of them, एंड आई यूज्ड टू स्टैंड ऑन द स्ट्रीट विद अ ट्रांजिस्टर विद ऑल द नेबरिंग किड्स, एंड आई यूज्ड टू से इसमें जॉन ने खून किया. अरे तेरे को कैसे पता है? लिखा मैंने है भाई. ऑब्वियसली नोबडी बिलीव्ड मी, बट दैट वाज द फर्स्ट फोरे इनटू काइंड ऑफ दैट आई कैन डू समथिंग व्हिच कैन पे मी. ये जो पुस्तक हमारी है, हमारी जीवन यात्रा यानी जर्नी ऑफ लाइफ, गहरे सागर के तट पर, ये जीवन का सार है. चूँकि मैंने पूरी कविता तो आपको इसमें कई जो आपको बर्थ, जीवन, लाइफ, डेथ के बाद ये सारी चीज़ें उसको मिलेंगे, लेकिन ये जीवन का सार, इसका सार्थक है. गहरे सागर के तट पर चमकती सुनहरी रेत पर, गहरे सागर के तट पर चमकती सुनहरी रेत पर, रेत के महल हम बनाते रहे. गहरे सागर के तट पर चमकती सुनहरी रेत पर, रेत के महल हम बनाते रहे, सपने हसीन सजाते रहे. जीवन भर हम यही करते, सपने हसीन सजाते रहे. अटखेलियाँ करती सागर की लहरें, गिराती रही रेत के महल. ऐसे ही हमारे रेत के महल, सपनों के महल गिरते हैं. तो अटकेलियाँ करती सागर की लहरें, गिराती रही रेत के महल, समय की लहरों के साथ आगे बढ़ती जीवन की नौका, तलाशती रही किनारा. देखो, तुम कुछ भी बन जाओ, अगर कोई गलत करता है तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो. लेकिन अगर पत्रकार हो तो लिख तो सकते हो, और जब लिखोगे तो तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हमने कुछ तो किया. एंड दैट मेड मी ए प्रोफेशनल राइटर, जो आप बता रही थी तन्वी जी. बट ए राइटर कैन नॉट बी प्रोफेशनल इफ इज इन क्रिएटिव थिंग. ये तो प्रोफेशनलिज्म था बिकॉज आई वॉज राइटिंग टू अर्न ए लाइवलीहुड. लेकिन जब तक अंदर से कोई इंस्पिरेशन नहीं आता है तब तक आप ऑथर नहीं बन सकते. जब तक आप सेंसिटिव नहीं है चीज़ों के प्रति. अगर कोई ह्यूमन राइट्स की बात करता है तो वो सेंसिटिव है उसके बारे में. आप जाते हैं किसी एक्सीडेंट को देखते हैं, आप चले जाते हैं छोड़कर, आपको ये नहीं लगता कि उसका भी कोई परिवार होगा, उसमें क्या गुजरी होगी. तो अगर सेंसिटिव आप नहीं है तो आप ऑथर नहीं बन सकते. इट्स नॉट एन आर्ट कि आप AI कर लीजिए, चैट GPT कर लीजिए, आपको मिल जाएगा. ऐसा कुछ नहीं है. वो प्रोफेशनल राइटर आप अपील नहीं करेंगे, अपनी किताब को खुद छापेंगे, खुद पढ़ेंगे, क्योंकि आपको लिंक करना पड़ेगा लोगों से. विचारधारा आपको दृष्टि देती है. वो दृष्टि से, उस दृष्टि को लेकर जब आप लेखन शुरू करेंगे तो वो कहीं ना कहीं अपने आप उसमें चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएंगी. उस पर आरोपित करने की ज़रूरत नहीं है, उसको उल्था करने की ज़रूरत नहीं है. जो ही आपने उसको आरोपित करना शुरू किया, आपकी जो सृजनात्मक क्षमताएं हैं वो नष्ट होती चली जाएंगी, और जो रचना है वो बजाय रचना के वो विचारधारा का चूं चूं का मुरब्बा भी कई बार बन जाएगी. तो इसलिए ये इन चुनौतियों, और उस फिर भाषा की बात आई कि ये घबरा गए कि आज उर्दू कौन समझेगा, तो मैं अगर लिखूंगा तो मुझे इसलिए अंग्रेज़ी में लिखना चाहिए. वेल, इनका थॉट है, बड़ा अच्छा है. लेकिन मुझे लगता है ये जो कम्युनिकेशन जब हम करते हैं
अब ये हम भवानी प्रसाद मिश्र हमारे बहुत बहुत बड़े कवि हुए हैं। हिंदी के अनु कि जिस तरह तू बोलता है उस तरह तू लिख। मैं उससे भी आगे कहता हूँ, मैं कहता हूँ जिस तरह तू सोचता है उस तरह से लिख। जो आप सोच रहे हैं आप उस तरह से लिखिए। Voilà. Merci beaucoup. Merci à l'équipe d'organisation de la littérature du festival littéraire de Noida. I would like to thank you very much, especially thanking the committee for organizing the 10th Global Literary Festival Noida 2024. J'ai entendu c'est Monsieur Sunil. Monsieur Sunil a dit read and write. Read and write, ça veut dire écrire et lire. I heard Mr. Sunil saying that we have to write and then we read. Donc, moi, je voudrais humblement dire une fois de plus, merci beaucoup à Monsieur Marois et je voudrais lui dire ceci. Le journaliste, c'est un écrivain qui s'ignore. I would like to thank humbly Mr. Marwa, and I wish also to tell him that the journalist is a writer who ignores himself. साहित्य में पूजनीय, वंदनीय और वही कृतिकार, रचनाकार कालजयी होता है जो समष्टि के कल्याणार्थ बात करता है। जो 600 वर्ष पहले लिखी गई बात गोस्वामी तुलसीदास जी को कहने की जरूरत नहीं है कि रामचरितमानस खरीदो। कबीर वाणी को खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको कहने कोई प्रचार की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है जाके किताब मांगना है, श्री रामचरितमानस। और तादाद में स्थान में काशी का हूं, कितनी पीड़ा उन्होंने झेला उस रचना को आप सभी लोग जानते हैं। सुधे विद्वज्जन है, वो चाहते तो पूरी की पूरी रचना जो उन्होंने उठाया राम जी के ऊपर तो लिखा है, सब लोग जानते हैं, घर घर में प्रचलित है। रामायण लिखी जा चुकी थी, संस्कृत में था वो, लेकिन अवधि में लिखा। लेकिन बताना यह भी जरूरी था कि अगर मैं चाहता तो संस्कृत में लिख देता, तो सारे श्लोक सभी कांडों के संस्कृत में लिखा और अवधि में लिख दिया। रेडी वाला और पटरी वाला, छोटे से छोटे कारोबार करने वाला भी मालूम है उसको कि मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी क्या है, सीता रामचंद्र मोरे अनुदिन बड़े अनुग्रह तोरे क्या है, दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरो नाथ मम संकट भारी क्या है। तो वो यहाँ से जुड़ता है। हम वो एक बात जो कह रहे हैं वो जो सबके हृदय की बात बन जाती है, सबके हृदय को झंकृत करती है, वही सच है और उसी में हमें आनंद मिलता है। वही कविता का ध्येय है, प्रिय है, गेय है और वही प्रयोजनीयता के कारण अजर और अमर होता है। व्यक्ति साहित्यकार अमर होता है, उसकी कृतियां अमर होती हैं।